Good morning student. Today I teach you long types of admission of partners question to prepare revaluation account, partners capital account and new balance sheet. So question problem number 6. Problem number 6. A and B are partners. Their profit sharing ratio 3:2. Their balance sheet on 31st March 2020 as follows. Liabilities amount, assets amount. Liability side में long term loan 2 lakhs, current liabilities 2,50,000, capital account of A 1,20,000 and B 80,000, total 2 lakhs. Now fixed assets 3 lakhs, investment 50,000, current assets 2 lakhs and loan and advance 1 lakh. टोटल इज 6,50,000. फिर से समझिए, ए और बी पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को इस तरह है. लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन लाइबिलिटीज आपका है 2 लाख, करेंट लाइबिलिटीज आपका है 2,50,000, कैपिटल अकाउंट ए का है 1,20,000 और बी का 80,000 है. एसेट्स में ये फिक्स्ड एसेट 3 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 50,000 है 50,000, करेंट एसेट 2 लाख है और लोन एंड एडवांस जो है वो 1 लाख है. टोटल बैलेंस शीट का टोटल 6,50,000. On 1st April 2020, they agreed to admit C as a new partner for 40% profit on future. C brings 1 lakh as capital and 24,000 as premium for goodwill in cash. Their new profit sharing ratio 35:25:40. On same date, assets revalued as follows: fixed assets 4 lakhs, investment nil, current assets 1,80,000 and loan and advance 1 lakh. Prepare revaluation account, partners capital account and new balance sheet after C admission. ओके, फिर से समझिए. 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने सी को नया साझेदार के रूप में लिया है. सी को फ्यूचर प्रॉफिट का 40% 40% मिलेगा. सी ने 1 लाख रुपए पूंजी के रूप में और 24,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कैश में लाया है. उन लोगों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35:25:40 है. उस दिन ही एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ, पुनः मूल्यांकन. फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया 4 लाख, इन्वेस्टमेंट नील हो गया यानी 0 हो गया, करेंट एसेट्स 1,80,000 हो गया और लोन एंड एडवांस 1 लाख का ही है. प्रिपेयर आपको बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन. सी की नियुक्ति के बाद, एडमिशन होने के बाद नया बैलेंस शीट बनाना है. It is now a complete question of admission of partner. We solve this problem as follows. Old ratio of A is to B 3:2 according to your question. So A is 3/5 and B is 2/5. New ratio of A, B and C is 35:25:40. So 35/100, 25/100 and 40/100. अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. एज ओल्ड रेशियो इज 3/5 एंड न्यू रेशियो इज 35/100. तो 5 और 100 का एलसीएम किए तो 100 हुआ, 520 जा 100 एंड 23 जा 60, 100 हुआ या 100 एंड 35. तो A sacrifice is 25/100 और B old ratio is 2/5 and new ratio is 25/100. So LCM is 100. 520 जा 100, 22 जा 40 and 101 जा 100, 25 जा 25. So it is 15/100. So A sacrificing is 25/100 and B sacrificing is 15/100. Sacrificing ratio of A is to B. A is 25/100 and B is 15/100. So 100 is common. So it is 25:15. So now it is 5:3. तो A कितना sacrifice करा? 5/8 and B 3/8. Now C share of goodwill is 24,000 according to your question. आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C ने 24,000 गुडविल है. तो ए को कितना मिलेगा 5/8 ऑफ 24,000 दैट इज 15,000 और बी को कितना मिलेगा 3/8 ऑफ 24,000 दैट इज 9,000.
फिर से समझिए, इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 5/8 और 3/8। तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सी का कितना है 24,000। तो ए को कितना मिलेगा 5/8 इंटू 24,000 15,000 रुपये, और बी को मिलेगा 3/8 ऑफ 24,000 यानी 9,000 रुपये। तो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो देन वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? जब कोई नया साझेदार आता है तो हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूट करते हैं। यदि when asset increase it is a profit, so it must be credit side of revaluation, and when asset decrease then it is a loss, so it must be put in debit side of revaluation account. Same time when liabilities increase it is a loss, so it is put in debit side of revaluation, and when liabilities decrease then it is a profit, so it must be put in credit side of revaluation. According to your question, your fixed asset in balance sheet is 3 lakhs and revalued 4 lakh. So 1 lakh fixed asset increase. When asset increase, it is a profit, so it is put in credit side. Then investment is nil, and investment value given in your balance sheet is 50,000, and value is nil, so it is a loss, so it is put in debit side of revaluation account. Current assets according to your balance sheet is 2 lakhs and revalued for 1,80,000, so it is 20,000 is a loss. So your loss is 70,000 and your profit is 1 lakh, तो डिफरेंस अमाउंट 30,000 इज योर प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? बार बार बोल रहे हैं, जो ओल्ड रेशियो है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 30,000 का ए को मिलेगा 3/5 यानी 18,000, और बी को मिलेगा 2/5 ऑफ 30,000 12,000। Next we prepare capital account of A, B and C. तो now column particulars A, B, C, particulars A, B, C. A, B, C का पूंजी कितना है? A, B का आपका बैलेंस शीट में दिया है। A का 1,20,000 एंड B is 80,000, और C अपना कैपिटल लाया बैंक अकाउंट। C ने 1 लाख रुपए कैपिटल लाया। प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया था C ने 24,000, उसमें से A को कितना मिला 15,000 और B को मिला 9,000। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन कितना हुआ 18,000 एंड 12,000। अब टोटल कीजिए, तो A का टोटल हो रहा 1,53,000, B का 1,01,000 और C का 1 लाख। तो कैपिटल तीनों का कितना हुआ 1,53,000, 1,01,000 एंड 1 लाख। ओके, now we prepare balance sheet of A, B and C as on 1st April 2020. तो बैलेंस शीट में क्या फॉर्मेट होगा? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितना 2 lakhs, करेंट लायबिलिटीज कितना दिया 2,50,000, एंड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट बना है, ए का बैलेंस कितना है 1,53,000, बी का है 1,01,000 और सी का है 1 लाख। टोटल इज 3,54,000। तो टोटल ऑफ दिस बैलेंस शीट इज 8 लायबिलिटी साइड इज 8,04,000, 8,44,000 रुपया। फिक्स्ड एसेट्स आपका कितना था 3 लाख था, और एप्रिशिएट कितना किया 4 लाख हो गया। कितना एप्रिशिएट किया 1 लाख, तो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया 4 लाख। करेंट एसेट्स आपका कितना था 2 लाख, और बोला डिवैल्यूड कितना हुआ 1,80,000, तो कितना डिप्रिशिएट किया 20,000, तो करेंट एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया 1,80,000। लोन एंड एडवांस सेम अमाउंट 1 लाख, और कैश एट बैंक 1,24,000 कैसे हुआ ना, सी ने 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में और 24,000 गुडविल के रूप में लाया, तो मेरा कैश एट बैंक कितना बढ़ गया 1,24,000। तो टोटल कीजिए बैलेंस शीट में बोथ साइड इज 8,04,000, दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट का 8,04,000 रुपया हो गया। Student, you understood the long type of admission of partner, prepare revaluation account, partners capital account and new balance sheet. I hope you understood this solution. Okay, if you have any doubts regarding this topic, please send me in comment box. Thank you.